class 7 chapter 4 introduction to Visual Basic. Okay, today we will discuss about the introduction to Visual Basic, and this chapter has some important topics about Visual Basic. Starting the Visual Basic, how can we start the Visual Basic? About object oriented program. What is the object oriented program? About event driven programming. About integrated development environment. Okay, it is called IDE. Okay, integrated development environment. About toolbox, creating your first application and creating, opening and saving projects, making and running an executable file. Okay, and compilation options for your project. टोटल चैप्टर आपको 2 पार्ट में किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन अ सिंगल पार्ट, इन अ सिंगल वीडियो वी कांट कंप्लीट फुल चैप्टर. ओके, तो व्हाट इज आवर फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंट्रोडक्शन. ओके, विजुअल बेसिक इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज इवॉल्व फ्रॉम द DOS version. Okay, MS-DOS. It is called Microsoft Disk Operating System. Okay, DOS stands for Microsoft Disk Operating System version called Basic, and Basic stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. It is fairly easy programming language to learn. Okay, Visual Basic was designed to easy to learn and use because we have to program everything which we want to draw in MS-DOS through coding. Okay, but in Visual Basic we don't anything like we don't need and do anything for graphical representation for coding, using coding. Okay, ये कोडिंग का इस्तेमाल जो है विजुअल बेसिक में करना ही नहीं पड़ता है. वहाँ सीधे आप मतलब आप किसी भी पिक्चर को अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, आप इजिली क्लिक ऑन द आइकॉन एंड ड्रैग ऑन द मेन बॉक्स. ओके, देन programming in VB is conversion of visual arranging components or controls on a form of specify attributes and action of those components and writing additional line for code for more functionality. Okay, पहली बात है कि VB जो है ना, विजुअल बेसिक में आप बहुत हाई लेवल का कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको कुछ एडवांस उसमें ऐड करना है, स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स या एक्शंस कुछ करना है, तो आप उसमें एडिशनल लाइन ऑफ कोड लिख कर आप इजीली इसको मोर फंक्शनलिटी और मोर एक्सपेंडेबल बना सकते हो इजीली. ओके, क्योंकि आपको अगर एक ग्राफ को बनाना पड़ता है तो आपको MS-DOS में यू हैव टू डू everything using code like colors, graphical representation, everything. But in Visual Basic you have to only drag the icon and click on the main area. Okay, Visual Basic is a visual and basic and event driving programming language. These are main divergence from the old basic. In basic programming is done in a text only environment and the program is executed sequentially. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि विजुअल बेसिक का इस्तेमाल क्यों होता है. जो आप जितने भी कुछ देखते हो ना, एप्लीकेशंस वगैरह जो कि विंडोज़ में रन करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एटसेट्रा, इतना कुछ जो सारे के सारे जो विजुअल बेसिक के थ्रू ही क्रिएट किए जा सकते हैं. ओके, और बहुत कुछ जो हम चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं. ओके, हाउ विंडोज वर्क. A simplified version of Windows involves 3 concepts: Windows, events and message. Windows is simply a rectangular region with its own boundaries. आप देख सकते हो यहाँ पे जो है विंडोज जो है वो आपका रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज के अंदर है. ओके, एंड इट हैज़ देयर सम यूनिक आईडीज. Windows don't know by their names. Okay, first of all we have to know Windows don't know about their names. Windows know them about their unique code. Okay, क्योंकि विंडोज़ जो है इन्हें कभी भी इनको विंडोज़ जो है इनके नाम के थ्रू नहीं जानता. विंडोज़ जानता है इन्हें यूनिक कोड के थ्रू. जैसे कि अगर आपको बता दूं कि आपका जो स्कूल है, आपके बारे में जो डिटेल्स है, सारे के सारे डिटेल्स एक आईडी नंबर के अंदर कंटेंट्स रहता है, और उस आईडी नंबर में सारी की सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर डाले हुए रहते हैं. अब उस आईडी नंबर को डालने के बाद आपके सारे डिटेल्स जो है वहाँ पर चले आते हैं. इसी तरह से क्या किया जाता है कि विंडोज़ जो है उसको किसी को भी नाम के थ्रू नहीं जानता है. विंडोज़ जो जानता है उसे वो क्या जानता है, विंडोज़ उसे किसके द्वारा जानता है, विंडोज़ उसे यूनिक आईडी के तौर पे जानता है. ओके, तो अब एक बात है स्टार्टिंग विजुअल बेसिक. हाउ टू वी स्टार्ट विजुअल बेसिक. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन and display start menu. Click on all program to display program of sub menu.
क्लिक ऑन द, देख अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 पर आप जैसे आओगे आपके अंदर एक सब मेनू आ जाता है। सब मेनू में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0। ओके, नाउ व्हाट इज एन इवेंट ड्राइवन मॉडल। तो यहाँ पे इवेंट ड्राइवन मॉडल को मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ तो इसमें बोला जा रहा है कि देखो कोई भी जो पहले विंडोज़ में जो प्रोग्राम आप लिखते हो उसमें वर्क कैसे करता है। ऐसा नहीं कि पहला लाइन को एग्जीक्यूट करना है, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करना, नहीं। जिस हिसाब से आप सीक्वेंस सेट करोगे, यानी अगर पहले लाइन से इंडिकेट करते हो कि आपको चौथे लाइन पे पहले जाना है, तो आपका जो प्रोग्राम जो है वो पहला चौथा पहले जो है फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, देन फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगा। यानी कि आप जैसे डिटरमाइन करोगे वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। इसका कोई प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं होता है। इसका जो पाथ होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, एप्लीकेशंस के थ्रू डिसाइड किया जाता है, आपके कोडिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ओके, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो है कोई भी प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का कोई भी प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं होता है। ओके, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या, मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओप बोलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन सी एंड अदर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग टेंड्स टू बी एक्शन ओरिएंटेड whereas visual basic programming is event driven and object oriented. The unit of programming is the function, but in visual basic the unit of object oriented program is the class from which objects are instantiated या बोलेंगे होगा initiated. Procedural programs are concentrated on writing. However, VB programmer can create their own user defined types called classes. जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा अगर डिफाइन करूँ तो जैसे यहाँ पे यूजर डिफाइंड क्लासेस आते हैं। जैसे मैंने आपको मान लीजिए आपके यहाँ क्लास नर्सरी, क्लास KG, क्लास LKG, क्लास UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, क्लास नर्सरी के अंदर आपके नाम आते हैं और आपके नाम के अंदर क्या बहुत सारे डिटेल्स आते हैं। मतलब क्या कि हर एक का एक क्लास मैंने डिफाइन किया, उस क्लास के अंदर एक क्लास आया, उस क्लास के अंदर एक क्लास आया, मतलब कितने कुछ के डिटेल्स जो उसके अंदर है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्लास नर्सरी के अंदर बच्चे कुछ मान लीजिए 40 बच्चे आए। अब 40 बच्चे के अंदर मैंने अगर एक बच्चे पर पर्टिकुलर क्लिक करता हूं तो उस बच्चे के अंदर सारी डिटेल्स खुलते हैं। सोचा कितने सारे क्लास को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसी तरह क्लास डिफाइन करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ से जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया है तो मैं हमेशा इजी भाषा में क्लियर करने का कॉन्सेप्ट तैयार किया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क विद मी। ओके, थैंक यू।